Hello student, today you are going to learn the next topic, that is nomenclature of ketones, and we are discussing about the tribal name, that is common name, and the IUPAC name. Here some examples are given which covers the all rules, the rules which you have learned last year and now this year. The all examples are given here, and in your book some extra examples are given. Try this or use your brain power. You have to try that, you have to solve that exercise after this table. So leave space and solve this. This is homework for you and it is very easy. Last year we studied about the bond line structure, that bond line structure and the rules which you are going to learn now. All is the combination of this. Use your brain power and try this. So you have to solve that exercise after completing this table. So the first example is ketone. In examination, if the example is given, you have to first identify the functional group. So how you identify ketone? Ketone having 2 R group and CO. Many students get confused between the ethers and the ketone. In ethers, O, oxygen, is bonded with 2 R group, and in ketone, the 2 R groups are bonded by the CO. Means only the difference of this C. If this C is not written here, then it will become ether. So don't get confused. First focus on this functional group. Once you identify the functional group, then the different rules you have to remember and then write down the name. So here CH3COCH3 means 2 methyl group and 1 ketone, that is dimethyl ketone, or it is also called acetone. And what is the IUPAC name? Propanone. Why propanone? Here 1, 2, 3 carbon atom means derivative of propane, and the last part of this name is O and E, that is propanone. Then second, same example, instead of methyl group here ethyl group is written. Here C2H5 can be written or CH2CH3, one and the same thing. And in tribal name, alphabetical order means ethyl first, methyl later on, and ketone, ethyl methyl ketone. And how the numbering is done? This ketone must have the lowest possible number, therefore 1, 2, 3, 4. अगर यहाँ से नंबर डालते तो 1, 2, 3 नंबर पे कीटोन आएगा, इसलिए 1 लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को जाना चाहिए. तो इस तरह इसका नाम हो जाता है ब्यूटेनोन, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स एंड कीटोन, देयरफॉर ब्यूटेनोन. देन नेक्स्ट example, instead of this ethyl, here propyl and N-propyl group is taken. So here methyl and N-propyl, and according to the alphabetical order M and P, so M come first, therefore methyl N-propyl ketone. ये N नहीं देखना है आपको, आपको क्या देखना है? Propyl, methyl, butyl, etc. And what is the IUPAC name? Numbering 1, 2, 3, 4, 5. Therefore pentane 2-on. अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप उसमें है तो यहाँ पे पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, लाइक दिस आपको वर्ड यूज करना है, जो रूल हमने लास्ट ईयर पढ़ा है. देन उसके बाद है डाइथाइल कीटोन. दोनों इथाइल है तो डाइथाइल कीटोन और पेंटेन 3-on. यहाँ से भी 3 आता है, यहाँ से भी 3. अब उसके बाद यहाँ एक डेरिवेटिव यहाँ ज्यादा का डाला हुआ है, जिसको हम प्रीफिक्स कहेंगे. ये जो X है, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये प्रीफिक्स में जाता है. पर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमने हेक्सेन लिखा है, यानी इसके तरह लिखा है. इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही है जो कि कीटोन है. और ये जो हेलो ग्रुप है, ये हेलो ग्रुप कभी भी सफिक्स में नहीं रहता है, वो ऑलवेज प्रीफिक्स में रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी हेक्सेन ही लिखा है. तो 2 नंबर पे ब्रोमो गया तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हेक्सेन. 3 नंबर पे कीटोन है, 3-on. और ये जो नॉन सिस्टमेटिक नाम है, ये इसमें पहले नंबर के कार्बन फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच है उस कार्बन को अटैच है, इसलिए अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन. ये जो CH2CH3 स्ट्रेट चेन में है, इसके भी आइसोमर है, ये एन प्रोपाइल, इसलिए एन प्रोपाइल कीटोन. देन अगर ये डबल बॉन्ड इस तरह का है तो इसे मेसेटिल ऑक्साइड कहते हैं. और यहाँ पे हमने अगर नंबरिंग किया तो इसका नाम हो जाता है 4-मिथाइल. अब नंबरिंग कैसे, ये मिथाइल यहाँ पे भी है, CH3 C CH3, यहाँ 2 है ना, यहाँ पे
तो नंबरिंग हमने यहाँ से नहीं किया, हमने कहाँ से किया, जहां से कीटोन पास में आता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, यानी यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 और ये जो CH3 दूसरा है यहाँ अटैच है, यहाँ पे CH3 इस तरह अटैच है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 4 नंबर पे मिथाइल है। ओके, और पेंट यानी 5 है, इसलिए पेंट सिर्फ पेंट लिखा है, पेंटन नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ पेंट लिखा है। जैसे हेक्सेन पेंटन यहाँ पे लिखा है वैसे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से? ये डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है और ये कीटोन है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड और एक इस पे सिर्फ पेंट लिखा है। देखो ये छोटी छोटी चीजें पिछले साल हमने पढ़ी थी, वो याद रखना है। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे हम, पेंट 3 इन 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन डैश करके लिखेंगे, 2 नंबर पे CO है इसलिए 2 ऑन। इस तरह ये थोड़ा लंबा नाम है पर इजी है, पिछले साल के रूल्स और इस साल के रूल का कॉम्बिनेशन है। देन सेकंड, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये CO और ACO, और दोनों कैसे हैं? सेम है। अगर दोनों सेम रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वहां पे पूरे अल्केन का नाम लिखते हैं और डाइवर्ड यूज करते हैं और उसका नंबर लिखते हैं। ये रूल हमने पिछले साल देखा था, इस साल एप्लीकेशन है। और सिर्फ हमें क्या करना है, ONE ये वर्ड वहां पे यूज करना है। तो इस यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन हो गया, वो 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे कीटोन है इसलिए 2,4 डायोन। और वर्ड के और फिगर के बीच में हाइफन रहता है, 2 फिगर के बीच में कॉमा रहता है। तो ये पिछले साल ही हमने पढ़ा है, इसके कॉमनली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये CO और ये CHO। अब 2 अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें हम क्या ध्यान में रखते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना है, अगर नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए। तो वहां पे यहाँ हमने सबसे पीछे क्या लिखा है, Al लिखा है, यानी अल्डेहाइड को प्रायोरिटी है। हमें मालूम है कीटोन और अल्डेहाइड में से प्रायोरिटी किसे दी हुई है, अल्डेहाइड। और कीटोन ग्रुप अगर प्रीफिक्स में हम लिखते हैं तो उसे ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। तो ये नंबरिंग हमने यहाँ से किया जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, अल्डेहाइड पहले नंबर पे इसलिए यहाँ से चालू किया, और 3 नंबर पे कीटोन आ रहा है यानी 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनल, ये उसका नाम हो गया। देन अगर एरोमेटिक रिंग है तो इस तरह की, ये तो नाम हमने इसके पहले भी देखे, इसे डाइफिनाइल कीटोन कहते हैं और बेंजोफिनोन कहते हैं। बेंजोफिनोन दोनों जगह चलता है, कॉमन में भी चलता है और IUPAC में भी। देन अगर एक बेंजीन रिंग और एक मिथाइल ग्रुप कीटोन को अटैच है उसे मिथाइल फिनाइल कीटोन कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, इसे एसिटोफिनोन कहते हैं, 11th में पढ़ा है। अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसे आपको ध्यान से देखना, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, यानी ये साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है, इसलिए लास्ट में क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन नॉन ऐसे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कीटोन है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, जो यहाँ बुक पे यही दिया हुआ है पर एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। जब ये ऐसा रहता है तो ये टर्मिनल में क्या रहता है, कार्बन, और वो कार्बन को कितने अटैच है, हाइड्रोजन 3, यानी ये ऐसी कंडीशन हो गई। नंबरिंग हमने ऐसे किया 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, और 2 क्लोरो। अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये क्लोरो हेलो है और ये अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें नोट करना है, हमें नंबर से नहीं देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी C पहले लिखेंगे एंड बाद में लिखेंगे, तो उसका नाम हो जाता है 2 क्लोरो 4 मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन नॉन, है ना, 1 नंबर पे कीटोन है तो साइक्लोहेक्सेन, ये जो पेरेंट कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी है, ट्राई दिस और यूज योर ब्रेन पावर, वो सब इसके बाद आपको लिखना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। और वो किस चीज पे बेस है, पिछले साल हमने जो कुछ भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ा है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को पहले ओपन करके सब कार्बन और हाइड्रोजन दिखा देना, और उसके बाद ये सब रूल के तहत नंबरिंग करके उसका नाम लिखना है। तो ये काम आपको करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन।